फिर मैं भिजवा दूंगा, ठीक है? Okay, so we were doing case formulation. Briefly, case formulation is a core clinical skill that links assessment, information, and treatment planning. It is a hypothesis about the mechanism that cause and maintain the problem. It is, okay, sorry, there is a person. It answers the question, why is this person having this type of a problem? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और मैंने जैसे पिछली दफ़ा भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फॉर्मुलेशन क्या है। फॉर्मुलेशन एक तरीका है जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट दूसरे साइकियाट्रिस्ट को पेशेंट की इंफॉर्मेशन और उसकी अपडेट्स दे रहा है। और इसके DSM-5 के इन्फॉर्म्ड केस फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज असेसमेंट, enhancements, organization, background information. Second is case formulation, which is set of diagnostic criteria with background information, and then the treatment planning according to the best practice guidelines are often tied to a diagnosis, and it measures to monitor as well. Case formulation DSM-5, biopsychosocial model in case formulation, the 5 P's of case formulations, doing a case formulation using a DSM-5. और इसमें psychological factors, biological factors और socio-cultural factors सारों को involve करना। Now this is the key कि जब हमें formulation present करी, मुझे एक डॉक्टर साहब ने WhatsApp पे formulation message की थी, और वो जो डॉक्टर साहब ने फॉर्मुलेशन मैसेज की थी, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू लुक एट इट बिकॉज ऑफ माय स्केड्यूल, बट ओवर द वीकेंड आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल गिव यू द फीडबैक. The 5 P's which are important are presenting problems, predisposing factors, precipitants, perpetuating factors and protective factors. ये लाजमी फॉर्मुलेशन में बताने हैं. सो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम के पेशेंट आया क्यों, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इस बीमारी ये बीमारी हुई क्यों, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो अभी करंटली जिसकी वजह से बीमारी के सिम्टम्स वर्स हुए, और परपेचुएटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीमारी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्स करते हैं, ख़राब करते हैं या मेंटेन करते हैं. एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के बेसिस पे बीमारी बेहतर होगी, किन फैक्टर्स के बेसिस पे बीमारी ख़राब हो जाएगी. सो दीज वर द 5 P's. फिर बात करूँगा फॉर्मुलेशन जब आपने प्रेजेंट करनी है तो आप कहेंगे जी ये दिस इज़ द केस ऑफ Dr. Nasar, who is suffering from major depressive disorder for past almost 2 years' time. He went to various psychiatrists, got the treatment. Unfortunately, he was not responding to the treatment. His sleep and appetite was worsening, and he started having suicidal thoughts, due to which he came to the hospital. So, presenting problem would be the suicidal ideation. Predisposing factors, Dr. Nasar is having multiple life problems. There were some financial losses, there were some complication with the birth, development, milestones, abuse, verbal, physical, sexual. ये सारे predisposing factors हैं. Genetic history, family history, his father, strong family history of bipolar disorder or affective disorder, and then psychological factors. Emotionally, he is very sensitive, very docile, fragile kind of a person. He is introvert. He is having a personality of, say, schizoid personality, if you'll be able to assess that. And then the precipitant, the current precipitant was the major financial loss in the company. Because of this pandemic, the business closed down and he was home and he was not doing anything. So he started having the symptoms back again and relapsed. Perpetuating factors, the financial and economical problems are perpetuating factors. Then the problems associated with personality are perpetuating factors. Then the problems associated with the social support,
family conflicts, relationship with the wife, relationship with the children, and others are the perpetuating factors. And protective factors are when there are some good parts of it. So he is having a strong family bonding, the people in the family are very much caring, they support him financially, psychologically, socially. So overall, that is a support available and he can be good in it. So that is what 5Ps means, right? Okay, okay. So there are 3 more messages. Okay, शुक्र है. So ये वो फैक्टर्स हैं. थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ इसी स्लाइड से आगे. The 5Ps in DSM-5, the diagnostic criteria. जब भी आप किसी पेशेंट का कोई भी डायग्नोसिस बनाते हैं, उसमें अगर आप DSM को फॉलो करें या ICD-10 को, तो कुछ मेजर क्राइटेरियाज हैं, कुछ माइनर क्राइटेरियाज हैं, और फिर उसकी सब क्लासिफिकेशन है. मसलन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर क्लासिफिकेशन लें या स्किज़ोफ्रेनिया की लें या किसी की भी लें, तो उसमें एक्यूट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, फिर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और आखिर में एक लफ्ज़ लिखा होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर NOS या स्किज़ोफ्रेनिया NOS या bipolar disorder NOS. NOS stands for not otherwise specified. ये ICD-10 में भी क्राइटेरिया. जहाँ पे आप फंस जाएं, जहाँ पे आपको समझ आनी बंद हो जाए, जहाँ पे आपको डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस कुछ नहीं मिली, लेकिन आपको 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं. सोशल ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन है, नॉन फंक्शनिंग पेशेंट है, प्लस ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग 40 से नीचे है, कम्युनिकेशन उसकी ख़राब है, और आपको ये इंटेंस फीलिंग है कि इस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिल रहा. सो वो जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो भी एज सच इतनी क्लैरिटी से आपको नहीं मिल रहे. देन द बेस्ट ऑप्शन देयर इज दैट यू से दैट दिस इज साइकोसिस NOS. ये उस सूरत में बयान कर रहा हूं कि जब आप फंस जाए. यूजुअली ऐसा नहीं होता. सो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एविडेंस मिल जाता है, लेकिन डिसऑर्डर्स का स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना जरूरी है. सो जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है और फिर उसकी डिसऑर्डर की सब टाइप्स हैं और जो उसके स्पेसिफायर्स हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. स्पेसिफायर्स का कितने लोगों को अंदाजा है? Anybody who knows about these specifiers? Anybody? Chat box में बोल दो. Specifier exactly याद नहीं सारा, लेकिन वो एंड पे जो दिए होते हैं कि स्पेसिफाई कि फर्स्ट एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है, विद साइकोटिक सिम्टम्स है या विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, वो जो स्पेसिफायर्स एंड पे दिए होते हैं. हाँ. एक जनरल क्राइटेरिया के बाद. बिल्कुल. सो उसका अंदाजा है ना? जी सर. अब मसलन मैं DSM निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उससे रिलेट कर दूं उन कोड्स को, और फिर जो चेंजेस हैं उनको हम देख लें. मेरे पास इस वक्त अब वो निकलेगी नहीं. बहरहाल, I think I sent DSM-5 in this group, right? So शायद इस एकेडमिक्स के ग्रुप में मैंने पहले DSM-5 भेजी थी. चेक करके कौन बताएगा मुझे? मैं चेक करता हूँ. अगर तो भेजी थी तो बेस्ट है, नहीं भेजी थी तो मैं दोबारा भेज दूँगा. DSM-5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ऑक्सफोर्ड फिनोमेनोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, कैटाटोनिया, जेनेटिक्स, रिवाइज्ड APA, oops, नहीं भेजी भी. Okay, sorry for that. I will try to get it for you people. मेरे पास थी PDF में, so I will try to send it again. The DSM-5 मोड्सले गाइडलाइन भी भेजी हुई है, लेकिन वही नहीं भेजी हुई. सरप्राइजिंगली नहीं भेजी हुई है. ओके,
ये मैंने खोल ली है DSM-5, ये इस ग्रुप में मौजूद है। मैं दोबारा से ये सारी किताबें जो इस ग्रुप में मौजूद हैं वो भेज दूंगा। अब मैं इसका इसलिए खोलना चाह रहा था कि मैं सिर्फ थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाह रहा था। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, द प्रेजेंटेशन? Oops. नो सर। गायब हो गई। ओके सर आप आ रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, मैं गायब हो गया हूँ। लेट मी चेक। ओके, मेरा ख्याल है क्या चीज़? सर आपको नजर आ रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रही सर। मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दे देना मुझे, मैं अभी शेयर करता हूँ। सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन के बगैर तो मैं केस फॉर्मुलेशन, ओके शेयर, आई होप इट स्टार्ट्स। यस, हो गई। ओके, मैं DSM-5 खोल के पढ़ रहा था और इसमें डायग्नोसिस है OCD। इसका the following specifier applies to OCD and related disorders were indicated with good or fair insight, with poor insight, with absent insight, और 300.3 जो है वो OCD टिक रिलेटेड है, 300.7 है वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर विद मसल डिस्मॉर्फोफोबिया है, और 312.29 ट्रिक्टिलोमेनिया है, और 696.4 एक्सकोरिएशन और स्किन पिकिंग डिसऑर्डर है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये जितने स्पेसिफायर्स मैं बयान कर रहा हूं, सिस्टम की खूबी ये है कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं और आपने हिस्ट्री में डायग्नोसिस कर लिया कि इसको OCD है, और उसके बाद आप हिस्ट्री में उसके साथ एक और चीज मेंशन कर देते हैं कि जी ये जो OCD है, इस OCD में टिक्स भी हैं। ये स्पेसिफायर हो गया, और इस स्पेसिफायर का एक अलहदा से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM में एग्जिस्ट करता है जो हमें मेंशन करना है। सो आइडिया बिहाइंड इज कि लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि आप प्रिसाइजली क्या बात करना चाह रहे हैं। सो इसलिए सब टाइप्स बताना कि जी ये OCD है विद मोर कंपल्शंस एंड टिक डिसऑर्डर, डायग्नोसिस 300.6। जब आप एक दफा ये मेंशन कर देते हैं, मींस आपने सारी बात बयान कर दी एज अ साइकियाट्रिस्ट के जी इस पेशेंट को OCD है और टिक्स हैं और साथ में इसको मल्टीपल कंपल्शंस मौजूद हैं। सो एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिर्फ बेस करती है कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर कि आप उसको एक्सप्लेन कर दें। आपने डायग्नोसिस बता दिया। सो द केस आई एम प्रेजेंटिंग टुडे इज diagnosed case of obsessive compulsive disorder with tics, diagnosis 300.06, right? और उसमें explanatory text है, he presented with these problems, associated with these problems, there is a strong family history, it runs in the family. Over the period of last 10 years, initially it started with obsessive thoughts about religion. Later on, it kept on worsening. फिर predisposing, perpetuating, protective factors or risk factors. फिर gender related diagnosis, cultural related diagnosis, suicide, homicide, functional consequences, or differential diagnosis or comorbidity. मुश्किल हो गया कि समझ आ गई? मुश्किल हो गया? ओके, मुश्किल हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड, ये मुश्किल हो गया। फिर ये कंफ्यूजिंग इसीलिए हो जाता है, और फिर इसीलिए हम
एग्ज़ाम ना हम पीजीज को समझा पाते हैं और ना एग्ज़ाम में उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाते हैं। बट एनीवेज फिर से बात करता हूँ कि जब हम फॉर्मुलेशन लिख रहे हैं, अच्छा मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। Nasra was fired from her job 1 month ago because she started making numerous mistakes and had trouble concentrating. About 3 months ago, she started feeling down after a break up of her engagement with a man she had been engaged since early childhood. She has trouble falling asleep and has noticed a significant decline in her appetite. She feels like a failure and believes that no one will want to hire her again. अब ये केस सिनेरियो, इसकी मजीद एलैबोरेशन है. She has thoughts of committing suicide but admits, I could never do it. The only thing that seems to help is when she recites Quran. She explains that during that time I am more like my old self and at least that night I can sleep. She also reports that her mood improves when she visits her friends. However, she reports such low energy throughout the day that she is unable to schedule a job. Yes, scenario hai. She had a similar episode about 2 years ago after she was laid off from her former job. She reports that it took 4 months before she began feeling normal again and positive about herself. Her history indicates that her mother had a severe depression and was hospitalized on several occasions when Nasra was young. She describes her as negative and often absent in her youth. However, Nasra always did well in school and had an active social life. Her work history has been very consistent up to her layoff time period. अब मिसाल इस केस की जो दे रहा हूँ, इसको मज़ीद इजी लैंग्वेज में मैं फॉर्मुलेशन के केस में प्रेजेंट करूँगा। ये असल प्रॉब्लम आती है जब हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो क्या हम इन पैरामीटर्स पे हिस्ट्री एवेलुएट कर लेते हैं? दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट आई फील कि रेजिडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन निकालने में 45 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन नहीं निकलती, और ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन है जो हमें फ्लो में लेकर आ रही है। जहाँ इस फ्लो में गड़बड़ होगी, ये फॉर्मेट अचीव नहीं होगा। सो नौकरी से फारिग हुई, उसके बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन कैसी है। अब इसमें DSM-5 का डिप्रेशन का क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। उसका ब्रेकअप हुआ, वो प्रेसिपिटेंट था, एंगेजमेंट मंगनी टूट गई, बचपन के हालात और वाक़यात सख्ती के, माँ की प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री, वो परपेचुएटिंग फैक्टर्स थे, मेंटेनिंग फैक्टर्स थे, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे। नींद में खराबी है, भूख में खराबी है, एनर्जी में खराबी है, वो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। इसका आसान हल मैं फिर ये बताता हूँ सारे कैंडिडेट्स को कि जी पहले आप मरीज को देखें, देख के 5-7 मिनट पहले 5-7-10 मिनट अपना इम्प्रेशन कायम करें कि जिसको है क्या। जब आप उससे पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो पहले 5-10 मिनट में आपको ये फीलिंग हो जाती है कि जी इसको डिप्रेशन है, कि इसको मेनिया है, कि इसको बाइपोलर है, कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। ये जितने भी हम लोग साइकियाट्री में काम करते हैं, हम सबको इसका आइडिया हो जाता है। अब हमने उस केस को उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फिट इन करके इस फॉर्मेट में लेकर आना है। ये अगले 20 मिनट में आपने करना है, और आखिरी 10-15 मिनट जो फॉर्मुलेशन के या जो पेशेंट के साथ होते हैं, उसमें आपने सिर्फ चीज़ें वेरीफाई करके रिकन्फर्म करनी है और इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स को हटाना है। अगर इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे तो अवेलेबल है, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। सो मैं हमेशा रेजिडेंट्स को ये कहता हूँ, पीजीज को सारों को, कि जी पहले फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ट्राई टू सी द पेशेंट, then second thing is that you make an impression, then the third thing is to fit him or her into these things जो फॉर्मुलेशन के फॉर्मेट पे मैं पढ़ा रहा हूँ। और जब उसको फिट इन आप कर लें
और फिर आखिरी 10 मिनट में उन फिल इन द गैप्स को, जो जो आपसे इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई है उसको पूरा कर लें, आपका केस ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम बैठते हैं मरीज़ के साथ और हम गुफ्तगू शुरू करते हैं और मरीज़ की गुफ्तगू में आधी चीज़ें पूछते हैं, आधी भूल जाते हैं क्योंकि एंग्जाइटी होती है या किसी एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। अब हमें अंदाज़ा हो गया कि जी ये पेशेंट जो है ना, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके बावजूद हम बाकी चीज़ों को पूछते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज़ इस प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा दोबारा से इस प्रेजेंटेशन को रिव्यू कर लें। ये प्रेजेंटेशन इस जगह पे मौजूद है ग्रुप में, और फिर इस केस सिनेरियो के बेसिस पे जो मैंने बात की उसको अंडरस्टैंड करें, फिर प्रैक्टिस करें किसी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी। उससे 4 मिनट 5 मिनट बात करके इम्प्रेशन बनाएं। उस इम्प्रेशन को बना के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हवाले से बात करें उससे, फिर उसके जो 5 P's हैं उनको असेस करें। जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे, 5-10 मिनट इम्प्रेशन बनाना, 5 मिनट में आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में सवाल पूछने, इनडायरेक्ट ऑब्वियसली नॉट डायरेक्ट, और फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा करने के बाद इन फैक्टर्स को 5 P's को असेस किया, और फिर देखें कि आप कितना बात कर सकते हैं। उस पर फिर हम एक डिस्कशन वाला सेशन रख लेंगे किसी मरीज़ के साथ, किसी 1-2 लोग वॉलंटियर करके बात शुरू करें और फिर हम देख लें। सो अगर तो इसको प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह से तो फिर इम्तिहान में मसला नहीं होगा, वरना इम्तिहान में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक जाएगी। डायग्नोस्टिक वर्कअप में 5 मेजर्स। लेवल 1 पॉजिटिव फॉर डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, अवॉइडिंग सर्टेन इवेंट्स। फिर इसमें ये जो स्केल्स यूज करने का कॉन्सेप्ट है, हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड की। अभी रिसेंटली वो राना साहब की प्रेजेंटेशन हुई है PTSD पे, वो कुछ मैंने भी सुनी, और मैं हमेशा सारे रेजिडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि आप देखें उसमें से अगर पॉजिटिव चीज़ें आप पिक करें तो आपको बहुत समझ आए कि मरीज़ से कैसे बात करनी, मरीज़ से कैसे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, क्या सवाल पूछने के मरीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, जहाँ आपको लगे कि जी आप फंस गए हैं, आप इस मरीज़ की हेल्प नहीं कर सकते, वहाँ ज़रूर अपने साथियों से, कोलीग से, जानने वालों से सेकंड ओपिनियन ले लें, इन्वॉल्व कर लें, उनको एंगेज कर लें, ग्रुप मीटिंग कर लें और मरीज़ को हेल्प आउट कर दें। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो जो ये स्केल्स हैं, PHQ है, HUDAS है, जनरल डिसेबिलिटी स्कोर है, लाइफ एक्टिविटीज़ का स्कोर है, पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी का स्कोर है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन, ये फॉर्मेट फॉर्मुलेशन का है। अब मैं यहाँ पे फिर रोक रहा हूँ, 11 स्लाइडें हुई हैं सिर्फ, आज हमने सिर्फ 4 स्लाइडें की। वापस जाएं, इस केस सिनेरियो को पढ़ें, केस सिनेरियो को पढ़ के अपने किसी साथी के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। 5-7 मिनट अपना इम्प्रेशन बनाने में, 5-7 मिनट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा करने में, 5-7 मिनट 5 P's निकालने में, ठीक है। 15 मिनट में ये काम करके उसको बंद कर दें, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपने और बहुत सारे काम करने एग्जाम में, लॉन्ग केस में, और उसमें आपको हिस्ट्री की जो नेगेटिव्स, इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स हैं वो रूल आउट करने, सब्सटेंस अब्यूज पूछना है, जनरल मेडिकल कंडीशन पूछनी है, सुसाइड होमिसाइड पूछना है, उसको असेस करना है, फिर आपने उसका मेंटल स्टेट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और सम अप करना है। सो टाइम मैनेजमेंट 45 मिनट की इम्तिहान में पूरे केस की अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इम्तिहान में मसला नहीं होगा, और अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इम्तिहान में फंस जाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो मैंने पिछली स्लाइडें बोली और जो आज की स्लाइडें बोली, इसका YouTube का लिंक भेज दूं। अगली दफ़ा कोशिश करूंगा कि YouTube पे लाइव भी चला दूं, और स्टिल जो लोग आ सके वेरी गुड, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एक दफ़ा यू आर इन, देन सब्सिक्वेंटली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो पहली दफ़ा मुश्किल है, वंस यू आर इन देन सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंटली मुश्किल नहीं होगा।
जुमे को रात को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम पे हम दोबारा मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनीबडी? गुड। सो या समझ आ गई? सारी समझ आ गई या बिल्कुल समझ नहीं आई? नहीं सर, समझ आई है। अच्छा, जिन लोगों ने पिछली दफा ज्वाइन किया था उन लोगों को इस दफा ज्वाइन करने में कोई मुश्किल हुई है? सर नहीं। परफेक्ट। सो इसका मतलब ये कि अगर आप लोग ज्वाइन एक दफा कर लेंगे तो सब्सिक्वेंटली टीम्स पे मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद